have a knowledge on management also in a construction management law. There are in this specialization, in this management specialization, there may be a post graduation also. Okay, na? There is a post graduation in this management also, the construction management सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है, एमटेक भी होता है, एमई भी होता है, सो दैट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ डेज मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. तो हाउ टू मैनेज द डिफरेंट different things. So we will have the 6 units in this construction management law. Again, every unit is having somewhat different concept, somewhat different ideas are there regarding the management. Different bits are there, how to manage the different things related with the various clauses which has been mentioned in the government bodies or which has been mentioned with the private sectors. So management plays an important role. And what are the different laws? Laws is also important. Okay? So we have to manage the different things by considering the laws. Okay? By considering the clauses, by considering the laws which has been mentioned in the गवर्नमेंट रिकॉर्ड बुक्स. ठीक है ना, रिकॉर्ड बुक्स में गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर में डिफरेंट लॉज आर देयर. तो वी हैव टू मैनेज इन सच अ वे बाय कंसिडरिंग द लॉज. ठीक है ना, तो ये एक थोड़ा सा अलग अलग है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड लॉ है. ठीक है ना, तो देर इज अ सेपरेट यूनिट फॉर लॉज ऑल्सो. लास्ट यूनिट आई थिंक सो 6 यूनिट जो है वो लॉ से रिलेटेड है. तो वी विल सी वन बाय वन the construction management and law, which things to be covered in construction management and law. So we will go through the different units. First of all, there is a scheme as per RTMNU. So what is the scheme says? The scheme says that there is an 80 marks university. There is question is there. Question paper is there for 80 marks. The time duration for this 80 marks for CML is construction management and law is 3 hours. Whereas 20 marks is internal. This 20/20 is 20 marks is internal marks. So overall there is the construction management and law subject is for 100 marks. Okay? The duration for this construction management and law for university exams is 3 hours. Okay? 3 hours का duration रहता है इसका. And total marks is 80, whereas 20 is internal marks depending upon your attendance, assignments and different things related with the college activities. तो 20 मार्क्स रहेगा. तो ऐसा ओवरऑल जो रहेगा 80 + 20 is 100 marks. ठीक है, देयर इज नो एज सच प्रैक्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड लॉ. जैसे एस्टिमेटिंग में आपने देखे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, there were near about 8 to 10 experiments we have to perform, but here construction management and law में it is totally a theoretical subject is there. Few numericals will be there. So maximum you can assume as near about 60% is the theoretical subject and 40% there may be numericals. There will be the numericals. ठीक है ना, तो उसमें से कैसा रहेगा, 60% के थ्योरी रहेगा ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड लॉ एंड 40% न्यूमेरिकल्स विल बी देयर. ठीक है ना, तो इट इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. तो यू शुड बी प्रेजेंट because it is a theoretical subject. So which points to be considered or which things are considered in the various units, so it is these units are very very important. ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट लॉ में 6 units are there. So we'll go through in short way what are the different things or different bits considered in this units. So unit number 1. तो यूनिट नंबर 1 में क्या है, देखो बेसिक स्टडीज इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. तो बेसिक स्टडीज इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या रहेगा कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. तो देयर इज अ स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स है, कुछ फ्लाईओवर्स हो सकते हैं प्रोजेक्ट्स में, और जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स जो रहता है ये स्मॉल स्केल है. और लार्ज स्केल में अगर होता है तो ब्रिजेस होता है, फ्लाईओवर्स होते हैं ना, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है. तो ये सारे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स वी विल स्टडी इसमें जो आएगा यूनिट नंबर 1 में. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. ठीक है ना, उसका बाइफर्गेशंस होगा, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स होगा, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स रहेगा. तो देयर इज बाइफर्गेशंस विच डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉस्ट, डिपेंडिंग अपॉन देयर ड्यूरेशंस ऑफ कंप्लीशंस. तो वो उसके डिपेंड के वी विल डिवाइड दिस इनटू डिफरेंट टाइप्स. ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स रहेगा इसमें. नेक्स्ट देयर विल बी फाइनेंसिंग. ठीक है ना, उसका फिर फाइनेंसिंग पार्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट. ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स विल बी डिवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंसिंग पार्ट आल्सो. ठीक है, तो फाइनेंसिंग पार्ट से भी उसको डिवाइड कर सकते हैं, ड्यूरेशन, टाइम ऑफ कंप्लीशंस एंड फाइनेंस पार्ट, इससे भी डिवाइड कर सकते हैं. तो व्हाट इज द डिवीजन और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स विल बी स्टडीड इन द यूनिट नंबर 1. ठीक है,
उसके बाद फिर नेक्स्ट बिट देखो, उसी में पॉइंट नंबर 1 में क्या है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनालिसिस। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनालिसिस में अगर व्हाट इज दिस थिंग, if you have to construct anything, what are the different parameters or what are the different things considered while constructing a building। कोई भी एक प्रोजेक्ट अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो what is the detailed analysis, what are the things considered, उसमें अगर कंस्ट्रक्ट करना है कोई भी बिल्डिंग में तो क्या क्या थिंग्स, what are the parameters, what are the different things considered while constructing a project। ठीक है ना, एक प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, रेसिडेंशियल हो सकता है या फिर कमर्शियल हो सकता है या फिर फ्लाईओवर या फिर रेलवे ब्रिज हो सकता है या कोई भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। तो उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट के एनालिसिस में उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है। फर्स्ट वी हैव टू ड्राफ्ट अ रिपोर्ट। ठीक है, तो उसमें विच थिंग्स आर कंसिडर्ड व्हाइल ड्राफ्टिंग अ रिपोर्ट। रिपोर्ट ड्राफ्ट करने से पहले, मतलब कंस्ट्रक्शन तो बाद में होगा, ठीक है ना, इट टेक्स टाइम, 6 मंथ्स में या फिर 1 ईयर में, 2 ईयर्स में वो कंस्ट्रक्ट होगा, बाद में होगा। बट बिफोर कंस्ट्रक्शन वी हैव टू ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन द ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। उसमें क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेज, अगर एक्सकेवेशंस में अप टू द लास्ट, सपोज देयर इज फ्लोरिंग होगा या फिर पेंटिंग होगा, फिनिशिंग होगा, so up to the last stage में what are the different stages, what are the different criteria considered for the constructions, उसमें क्या क्या parameters consider हो गए। तो all detailed report it is to be prepared। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम ही क्या है, detailed project report analysis। एनालाइज करना है the detailed about the project। ठीक है ना, we have to analyze the various things related with the project। एंड फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी वर्ड एक अलग से लिखा है उसने, एंड फिजिबिलिटी वेदर इट इज फिजिबल टू कंस्ट्रक्ट। अगर अगर डिफरेंट पैरामीटर से मैंने एक प्रोजेक्ट का रिपोर्ट तैयार किया है, अप टू मतलब डिफरेंट पेजेस में उसको तैयार किया, तो while drafting this report we will come to an idea that whether it is feasible to construct this project or whether it is feasible to construct within the stipulated time, within the cost available। ये अपना फिजिबल है नहीं है, तो आफ्टर ड्राफ्टिंग दिस रिपोर्ट वी विल कम टू एन आइडिया। अपन एक मतलब एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि वेदर इट इज फिजिबल टू कंस्ट्रक्ट और वेदर इट इज नॉट फिजिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है ना, तो फिजिबिलिटी इज अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्या, टाइम ऑफ कंप्लीशन। यस, टाइम ऑफ कंप्लीशन, अगर मैंने फिजिबल है तो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, तो टाइम ऑफ कंप्लीशन के अगेन देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स इज देयर। ठीक है ना, टाइम ऑफ कंप्लीशन हैम्पर होता है, टाइम ऑफ कंप्लीशन लेस होता है, मोर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस नेचर ऑफ वर्क। कुछ वर्क में इट रिक्वायर्स टाइम। ठीक है ना, कुछ ऐसे काम हो सकते हैं कि जल्दी हो जाएगा, है ना, इट टेक्स अ वीक और 15 days। but some type of work it is tedious work or it is a complex work, तो it requires time। ठीक है ना, कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो ज़्यादा टाइम लेगा, तो टाइम ऑफ कंप्लीशन इज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, टाइम ऑफ कंप्लीशन, ये सारा मैनेजमेंट विल बी टेकन केयर इन दिस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड लॉ, है ना। तो ये सारा मैनेजमेंट होगा कि कौन सा एक्टिविटी कितना टाइम लेगा, कौन सा एक्टिविटी शॉर्ट टाइम लेगा, कौन सा एक्टिविटी लार्ज टाइम लेगा, कौन सा एक्टिविटी में अगर लार्ज टाइम लेगा तो उसका कॉस्ट कितना रहेगा, शॉर्ट टाइम लेगा तो उसका कॉस्ट कितना रहेगा। तो दिस टाइम ऑफ कंप्लीशन इज again an important parameters। ठीक है, number third bit for this unit number 1 is provisions of escalations in time and cost। yes, escalation क्या है, what is escalation? escalation is change in time, मतलब कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा होता है। this word relates with less or more। escalation word कैसा होगा कि काम काम चलते चलते में कुछ ऐसा स्टेज आएगा, सपोज देयर इज अ हैवी रेन्स, अगर समझो जैसे अभी अभी कैसा हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन अगर बहुत फास्ट चल रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एक्शंस और ड्यू टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैवी रेन आया फॉर 2 to 3 days, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए एकदम हैवी रेन्स हुआ। तो अब उससे क्या होगा कि आगे की एक्टिविटीज और आगे नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, अफेक्टेड होगा, मतलब उससे रिलेटेड जो आगे का काम था वो क्या हो गया, डिले हो गया। हाँ, तो दिस इज नथिंग बट द एस्केलेशन इन टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, तो सपोज अगर ऐसा होने से क्या होगा कि आगे कॉस्ट भी ज्यादा लग सकता है और टाइम भी ज्यादा लग सकता है। जैसा अगर फाउंडेशन ट्रेंचेस, सपोज एग्जांपल है स्पॉट फाउंडेशन ट्रेंचेस, मैंने आज क्या किया था, फाउंडेशन ट्रेंचेस को जो होता फाउंडेशन को डिग किया था, पूरा मटेरियल निकाल दिया था, मगर एट द इवनिंग टाइम हेवी रेन्स इट हैज बीन अकर एंड ऑल द पिट्स व्हिच हैज बीन एक्सकवेटेड, जो मैंने दिन भर में जो काम करके जो पिट्स किया था, अब उसमें सारा पानी भर गया, तो क्या होगा फिर, dewatering will be taken place, है ना, तो extra labors will be required, extra machineries will be required and time consumption is also important। ठीक है ना, तो अगेन 2 to 3 days काय को लग रहे हैं मेरे को कि dewatering के लिए लग रहा है। ठीक है ना, तो this escalation in time and cost,
कॉस्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, मेरे मशीनरीज रिक्वायर्ड होंगे मेरे को निकालने के लिए सारा। अब रेसिडेंशियल का ऐसा है कि शॉर्ट एक पंप होगा उससे निकाल लेंगे, बट अगर हैवी प्रोजेक्ट है, अगर उसमें पानी भरता है तो डी वाटरिंग रिक्वायर्स हैवी इक्विपमेंट्स, उसको निकालने के लिए वैसे इक्विपमेंट्स लगेंगे, वैसे लेबर्स लगेंगे, वैसा टाइम कंज्यूम होगा, वैसा कॉस्ट लगेगा, फिर ओवरऑल कॉस्ट भी हैम्पर होगा, है ना। जो काम मेरे 6 महीने में हो रहा था, अब 6 महीने 6 मंथ 10 डेज एक्सटेंड हो गया, वॉट 15 डेज एक्सटेंड हो गया ड्यू टू दिस अनवांटेड, दैट इज अनवांटेड एक्टिविटीज, है ना, अनवांटेड एटमॉस्फेरिक एक्शंस, ठीक है। तो ये सारे चीजें कंसिडर्ड हो गई है एस्केलेशन के कॉस्ट और टाइम निकालने के लिए, ठीक है। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, which technology it has been preferred for constructions, which construction techniques you are preferring. Nowadays there are various advanced techniques which has been introduced in the construction field, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन फील्ड अभी कैसा हो गई, इट इज टोटली एक मशीनरी फील्ड बन गई है। पहले ऐसा था, तो पहले इन ओल्डन डेज वी आर कंस्ट्रक्टिंग विद द हेल्प ऑफ लेबर्स। नाउअडेज a simple work, it has been taken care with the help of the machineries, है ना। पहले ऐसा था कि concreting work by the laborers, with the help of laborers we are concreting, but nowadays we are using RMC, ready mixed concrete। उसमें लेबर्स भी नहीं है, कुछ मिक्सर मशीन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई लिफ्ट रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लेबर्स रिक्वायर्ड नहीं है, मूविंग ऑफ कंक्रीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बस क्या होगा कि आरएमसी का गाड़ी आएगी, रेडी मिक्स कंक्रीट आएगी, विद हेल्प ऑफ द पाइप्स इट हैज बीन पम्प्ड इनटू द स्लैब, एंड within 2 to 3 hours the slab it has been completed, ठीक है ना। तो 3-4 घंटे में क्या होगा, स्लैब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। बट इन ओल्डन डेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब रिक्वायर्स अ हैवी, a large amount of labors were required, large amount of machineries are required, and time consumption was also more ना। सुबह से लेके, है ना, starting from 9 a.m. to up to the 6 to 7 or at night also the casting was carried out, है ना। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स नाउअडेज यूज्ड एंड टेक्नोलॉजीज व्हिच वी आर यूजिंग रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन फील्ड, ठीक है ना। साइट प्लानिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। साइट प्लानिंग का एक चार्ट बनेगा कि वेरियस, मतलब साइट, अगर मेरे पास साइट है तो साइट की अगर मैं बाउंड्रीज डिसाइड करता हूँ, है ना, मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क तो बीच में होगा, है ना, मगर उसके आजू बाजू में मैंने अगर साइट, मेरे साइट की बाउंड्री मैंने बना दिया, और मैं क्या करूँगा कि ऑल मटेरियल्स इट इज टू बी डम्प्ड एट अ फिजिबल रेंज। मैं क्या करूँगा, जो मेरे पे जो एरिया में मेरे को काम करना है, at that particular construction areas all the materials should be available within the parameters। तो ये साइट प्लानिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। साइट प्लानिंग जो वर्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साइट प्लानिंग वर्ड, ठीक है ना। तो वी हैव टू प्लान इन सच अ वे दैट एवरी मटेरियल इट शुड बी अवेलेबल विद इन द परमिसिबल लिमिट, ठीक है ना, जो अपनी लिमिट से, और जो उसका जो मतलब जो कंस्ट्रक्शन में जो जैसे फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, स्टील, अब मैंने इतने दूर डंप कर दिया, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टील मेरे पास साइट पे अवेलेबल नहीं है, अभी मेरे को कास्टिंग करना है, तो इट विल रिक्वायर टाइम्स। ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है, फिर सीमेंट बैंक्स आ रहे हैं, और मेरा स्लैब रुका है, या फिर कंक्रीटिंग रुका है। तो ऑल these parameters it is to be considered while drafting or while taking care in this management, है ना। ये सारी चीजें, साइट प्लानिंग इज अगेन इम्पोर्टेंट। यूनिट 2 क्या है, यूनिट 2 इज कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग। सबको समझ में आ रहा है यूनिट 1? यस, यस, समझ में आया यूनिट 1 क्या रहेगा? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यस, Yes, sir. बी प्रेजेंट, Yes, Sir. sir. Yes, sir. बी प्रेजेंट, है ना। Yes, ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन कर दिए फर्स्ट इसमें और बाद में चले गए, ऐसा मत करो, ठीक है ना। जो फर्स्ट से लेके लास्ट तक यू शुड बी प्रेजेंट। Sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके। तो यूनिट नंबर 2 इज कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग। कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग क्या, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग? अगेन शेड्यूलिंग ऑफ वर्क इज टू बी डन। शेड्यूलिंग क्या है? अगेन इट इज रिलेटेड विद टाइम कंजप्शन। शेड्यूल करना अपने को। शेड्यूलिंग इज द मतलब एक एक्टिविटी अगर स्टार्ट होती है मेरी, सपोज मैंने एज्यूम किया कि मेरा एक्सकवेशन स्टार्ट हो रहा है आज के दिन। आज क्या तारीख है? आज 4th ऑफ सितंबर को आई एम स्टार्टिंग द अर्थवर्क इन एक्सकवेशंस। जो डिगिंग जो था मेरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ जो बिल्डिंग था, बिल्डिंग का आज मैंने एक्सकवेशन स्टार्ट किया। आज 4 सितंबर है, ठीक है ना। तो अब 4th ऑफ सितंबर से लेके
आपको सपोज देयर आर 10 नंबर्स ऑफ कॉलम्स, 10 नंबर्स ऑफ कॉलम्स का मेरे को एक्सकवेशन करना है, तो 4th ऑफ सितंबर से स्टार्ट किया, तो हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिग दिस 10 नंबर्स ऑफ कॉलम्स, कितने दिन लगेंगे, 2 days, 3 days. तो दिस शेड्यूलिंग फॉर फर्स्ट एक्टिविटी एक्सकवेशन, देन शेड्यूलिंग फॉर पीसीसी, शेड्यूलिंग फॉर आरसीसी फाउंडेशंस, देन फिर फॉर द प्लेन बीम कास्टिंग होगा, उसका शेड्यूलिंग करना है कि उसमें कितने लेबर लगेगा, कितना डेज लगेगा, और वो 10 कॉलम्स के लिए मेरे पास उतना अवेलेबल है क्या मटेरियल्स, और कितने दिन तक वो मतलब कास्टिंग होगा, उसका फाउंडेशन, फाउंडेशन 4 दिन में कास्ट होगा 10 कॉलम्स का, कि इट रिक्वायर 6 days, इट रिक्वायर 7 days, कितने दिन में वो 10 कॉलम कास्ट होगी, ठीक है ना। तो दिस शेड्यूलिंग, देर इज अ नेटवर्क डायग्राम, ये सारा नेटवर्क में होगा। ऐसा नहीं कि हवा में मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया कि 10 days आर रिक्वायर्ड फॉर 10 कॉलम्स, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ऑल दिस इट हैज बीन फ्रेम्ड इनटू अ नेटवर्क, बिकॉज वन एक्टिविटी इट इज कनेक्टेड टू अदर एक्टिविटी। जब तक कि एक्सकवेशन नहीं होगा मैं पीसीसी नहीं कर सकता, जब तक कि पीसीसी नहीं होगा फाउंडेशन कास्ट नहीं होगा, जब तक फाउंडेशन नहीं होगा प्लेन बीम नहीं होगा, प्लेन बीम नहीं होगा फ्लोरिंग नहीं होगा, है ना। मतलब प्लेन बीम के बाद में जो फ्लोरिंग और या फिर डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स होता है वो नहीं होगा, उसके बाद फिर ब्रिक वर्क्स होगा, फिर उसके बाद बीम्स कॉलम्स होगा, फिर स्लैब होगा, है ना। तो ये सारे स्टेजेस है। तो ऑल दिस नेटवर्क डायग्राम डिस्टर्बिंग, all this network diagram it is to be prepared, है ना, starting from first stage up to the last stage, ये network diagram आपको prepare करना है। तो यूनिट नंबर 2 is again 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 very important, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप टाइम कंज्यूम्ड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड। एक्टिविटी नाम दे रहा है, मतलब टेक्निकल वर्ड जो यूज करेगा ये कोई भी काम करने के लिए, जैसा एक्सकेवेशन एक एक्टिविटी हो गया, पीसीसी एक एक्टिविटी हो गया, है ना, कास्टिंग ऑफ कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन एक एक्टिविटी हो गया, ठीक है ना, ब्रिक वर्क एक्टिविटी हो गया। तो एक्टिविटी नाम देते हैं टेक्निकल वर्ड सीएमएल में, ठीक है ना। तो हर एक्टिविटी का एक चार्ट बनेगा, नेटवर्क डायग्राम बनेगा, तो वो नेटवर्क डायग्राम वी विल कंस्ट्रक्ट इन यूनिट नंबर 2, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, शेड्यूल करना है। अब नेटवर्क एनालिसिस में देखो ये दो मेथड्स है, एक तो जो हाईलाइट किया मैंने रेड में सीपीएम मेथड। व्हाट इज दिस सीपीएम? क्रिटिकल पाथ मेथड। मतलब ऐसा मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसमें कौन से एक्टिविटी को मैं कम करके मेरा प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी कर सकता हूँ। जैसा मैंने सपोज सपोज मैंने अज्यूम किया था कि भाई 6 दिन में मेरे को पीसीसी करना था, बट मतलब 10 days में पीसीसी मैंने एक अज्यूम किया था, बट इट रिक्वायर्स ओनली 6 days। तो मैं क्या करूंगा, वो 4 दिन कम कर दूंगा पीसीसी का, और वो 4 दिन मैं एडिशन करूंगा स्लैब कास्टिंग के लिए, या फिर 4 दिन वो ऐड करूंगा मैं कॉलम कास्टिंग के लिए, है ना। तो ऐसा कुछ मैं करके मतलब कुछ एक्टिविटीज को कम करके, कुछ एक्टिविटीज को ज्यादा वेटेज देके और ज्यादा डेज देके, तो ऐसा सारा नेटवर्क डायग्राम डिसाइड होगा। और वो मेथड को बोलेंगे आप क्रिटिकल 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 पाथ मेथड। क्रिटिकल, है ना, उसमें कुछ एक्टिविटीज डमी एक्टिविटीज रहेगा, कुछ एक्टिविटी ऐसा रहेगा कि मैं सिर्फ रख रहा हूँ उसको, काम कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, डमी एक्टिविटी। तो ऐसा सब फ्रेम करने के बाद जो नेटवर्क डायग्राम बनेगा दैट इज नथिंग बट द क्रिटिकल पाथ मेथड। और एक है जिसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट है, दैट इज द प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये भी एक मेथड है, बट नाउ डेज सीपीएम मेथड इज देयर। ये भी एक मेथड है, पर्ट जिसको बोलते हैं शॉर्ट में पीईआरटी, प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये भी एक है ना। उसके बाद फिर उसका बार चार्ट भी बनेगा। रिसोर्स ओरिएंटेड शेड्यूलिंग। रिसोर्स ओरिएंटेड शेड्यूलिंग मतलब क्या है कि मेरे साइट पे उतना रिसोर्स अवेलेबल है क्या। सपोज मेरे पास पीसीसी है, तो पीसीसी के लिए मेरे पास 50 bags of cement is required. So whether my site is I am available with 50 bags of cement, मेरे for casting of this I require near about 200 meter cube of fine aggregate और 100 meter cube of fine aggregate। तो ये सारा अवेलेबल है कि मेरे पास। तो ये रिसोर्स ओरिएंटेड शेड्यूलिंग भी करना है। रिसोर्स ओरिएंटेड शेड्यूलिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। रिसोर्सेज, मेरे पास उतना रिसोर्सेज अवेलेबल है so that I can execute a particular type of work or I can complete particular type of work within that time, within the stipulated time, ठीक है ना। तो रिसोर्सेस, फिर उसका वही एलोकेशंस प्रॉपरली एलोकेट करना है, कौन से रिसोर्स कौन से एक्टिविटी को कितना रिसोर्सेज लग रहा है, कितना कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, कब लग रहा है, टाइम है उसका। आज लग रहा है, मैं कल आके अपना साइट पे अगर सीमेंट आएगा और आज मेरे पास कास्टिंग ऑफ स्लैब है तो होगा कैसा, तो 1 day इट हैज़ बीन वेस्टेड, ठीक है ना।
तो आज अगर लगता है 150 बैग्स ऑफ सीमेंट, तो कल मतलब एट 3rd of September आई शुड बी, माय साइट शुड बी अवेलेबल विथ 150 बैग्स ऑफ सीमेंट, क्योंकि कास्टिंग आज हो रहा है ना। तो ये अलोकेशंस डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी इट इज टू बी टेकन केयर, है ना। उसके बाद लेवलिंग, लेवलिंग इन द सेंस उसको प्रॉपरली मतलब फ्लो में है नहीं है, लेवलिंग है नहीं है, प्रॉपर वे में मतलब वो एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है एक्टिविटी, लेवलिंग ऑफ दैट एक्टिविटी। क्रैशिंग एंड क्रैशिंग एंड टाइम और कॉस्ट ट्रेड ऑफ, ये भी एक इम्पोर्टेंट, कुछ जैसे मैंने बताया था कि कुछ को अपन शॉर्ट कर देगा, कुछ को एक्सपांड कर देंगे, कुछ एक्टिविटीज एक्स्ट्रा हो जाएंगी। मतलब कैसा होगा कि इसका ड्यूरेशन कम कर दो, उसको ऐड कर दो, उसका कम कर दो, किसी और को ऐड कर दो, या फिर कोई एक्टिविटी उसमें निकाल दो बीच में से। तो ये सारा जो होगा एक्टिविटीज से रिलेटेड काम, वो सारा क्रैशिंग एंड टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ होगा। लाइन ऑफ बैलेंस, ऑल द एक्टिविटीज इट इज टू बी इन लाइंड इन सच ए वे दैट हर काम प्रॉपर वे में चलना है ना। ऐसा नहीं है कि एक काम को इतना वेटेज दे दिया, दूसरा काम हैम्पर हो गया मेरा, है ना। तो लाइन ऑफ एक्शन शुड बी प्रॉपरली मेंटेन, बैलेंसिंग शुड बी देयर इन डिफरेंट एक्टिविटीज। ये सारा बैलेंसिंग प्रॉपर रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सकेवेशन टू फिनिशिंग, तो अपना काम विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम कंप्लीट होगा। बैलेंसिंग नहीं होगा कि मेरे पास सीमेंट अवेलेबल था, स्टील नहीं था, क्या हो गया फिर, बैलेंस नहीं हुआ, है ना। सीमेंट रहेगा मगर व्हाट इज द यूज ऑफ सीमेंट विदाउट स्टील, स्टील के बिना सीमेंट का क्या यूज है। या फिर सीमेंट है और ड्यू टू रेनी सीजन देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, जैसा अभी आजकल होता है फाइन एग्रीगेट इट इज रेयरली अवेलेबल, है ना, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट्स, है ना। तो अब सीमेंट तो है मेरे पास, स्टील भी है, कोर्स एग्रीगेट भी है, मगर फाइन एग्रीगेट इज नॉट अवेलेबल। तो आई शुड बैलेंस द डिफरेंट एक्टिविटीज, तो लाइन ऑफ बैलेंसिंग इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। Unit number 3 is again important. This unit number 3 in short is 3M management. इसको short में क्या बोलते हैं, unit number 3 को, unit number 3 is 3M management. ये क्या है 3M? What is this 3M indicates? 3M में first M is manpower, next M is number 2 is material and number 3 is machinery. मतलब ये तीनों चीज़ों को मैनेज करना है at a time, अलग अलग नहीं, at a time we have to manage manpower, at a time we have to manage materials, and at the same time we have to manage the machineries required to execute a particular type of work, ठीक है ना। ये तीनों चीजें एक साथ लेके चलेंगे तो सो दैट आवर कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी कंप्लीटेड विद इन द रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है। जो मैंने टाइम स्पेसिफाइड किया था, जो मैंने नेटवर्क बनाया था, उसके अंदर ही मेरा काम हो जाएगा इफ दिस थ्री थिंग्स इट इज टू बी मैनेज इन प्रॉपर वे, ठीक है ना। तो मैन पावर एक बिट है अलग से, जिसमें जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया, दिस इज नथिंग बट मैन पावर, ये मैन पावर है। और नेक्स्ट इज मटेरियल, ये मटेरियल वाला पार्ट है, और मशीनरीज वाला पार्ट है। तो ये जैसा मैंने 3M बताया था, तो हर एक बिट का, जैसा हर एक वर्ड का मैन पावर का अलग अलग एक पूरा एक है। मैन पावर में उसके कितने रिक्वायरमेंट्स है मैन पावर में, उसका कैसा मैं कैलकुलेट करूंगा कि हाउ मच वर्क इज टू बी डन बाय अ सिंगल मैन, अ सिंगल लेबर, एक लेबर एक दिन में कितना काम करेगा, है ना। तो दिस विल डिसाइड द कंप्लीशन पीरियड, ये डिसाइड करेगा कि एक मेसन एक दिन में कितना काम करेगा। दिस विल डिसाइड द कंप्लीशन पीरियड, क्योंकि ये सारा मिलके काम होगा, है ना, ये ग्रुप है ना। एक लेबर भी अगर काम नहीं करता है या फिर एक मेसन भी काम नहीं करता है, दैट मीन्स मेरा टोटल कॉस्ट भी हैम्पर होगा और टोटल कंस्ट्रक्शन का टाइम भी हैम्पर होगा, है ना। तो अगर नहीं करता है तो वी शुड हैव सब्स्टिट्यूट फॉर दिस, है ना। तो ये सारा मैनेजमेट मैन पावर रिलेटेड है ना। रिक्वायरमेंट एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी आउटकम, आउटकम कितना देगा, है ना। सपोज अगर 8 आवर्स अगर एक लेबर और एक मेसन और हेड मेसन काम करता है साइड पे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। 8 घंटे काम किया, पता चला कि उसने आधा मतलब ब्रिक वर्क्स उसने बहुत एक रियल इसमें ब्रिक वर्क किया, है ना। प्लास्टरिंग पूरा एक रूम भी, एक वॉल भी प्लास्टर नहीं हुआ, आधी वॉल प्लास्टर हुई, तो व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट मैन पावर, है ना। स्टाफिंग इज अगेन फिक्सिंग ऑफ द फिक्सिंग ऑफ द टाइम ड्यूरेशंस। उसका फिर प्लानिंग रिलेटेड पार्ट रहेगा, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रहेगा कि प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, डायरेक्टिंग प्रॉपर वे, सुपरविजन उसका डायरेक्टिंग प्रॉपर वे नहीं हो रहा है, ये सारा मैन पावर से रिलेटेड है ना। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, यस चार्ट इज देयर। हर एक जैसा एक इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके नीचे सेक्शनल इंजीनियर, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके नीचे में साइट इंजीनियर्स है या फिर इंजीनियर्स है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके नीचे सुपरवाइजर, उसके नीचे हेड मेसन, उसके नीचे वर्कर्स, उसके नीचे हेल्पर्स।
ये सारा चार्ट होता है ऊपर से नीचे तक, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ चीफ इंजीनियर और स्टार्टिंग फ्रॉम द हायर अथॉरिटी अप टू द लोवेस्ट अथॉरिटी, मेरे पास जो सबसे कम कैटेगरी का जो साइट पे लेबर है उसका भी क्या काम है, और सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे अगर मेरे साइट पे प्रोजेक्ट मैनेजर है या फिर है ना प्रोजेक्ट फर्म का बिल्डर है तो उसका क्या काम है। तो ये ऑल एक्टिविटीज का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज देयर, ठीक है ना। उसके ड्यूटीज क्या रहेंगे और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे। यस, मेरा अगर काम विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम कंप्लीट करना है तो एवरी मैन और एवरी इंडिविजुअल शुड फॉलो देयर ड्यूटीज, ठीक है ना। हर एक का ड्यूटी असाइन है। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ चीफ इंजीनियर, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ डिप्टी इंजीनियर, सुपरवाइजिंग इंजीनियर, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ कॉमन लेबर, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ हेड मेसन और मेसन। ये सारे काम अगर प्रॉपर वे में, प्रॉपर चैनल में, प्रॉपर ड्यूरेशंस में होंगे तो वी द प्रोजेक्ट वर्क विल बी कंप्लीटेड इन द स्टेबुलेटेड टाइम, ठीक है ना। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सनल मैनेजर्स, ये तो एक पर्सनल मैनेजर तो बट चार्ट ऊपर से नीचे तक बनता है, हर एक की ड्यूटी असाइन होती है। देन मटेरियल्स रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट ये स्टोरिंग डिलीवरी, जैसे मैंने बताया था कि प्रॉपर वे में स्टोर हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, डिलीवरी में टाइम हो गया, मेरे पास है ना साइट वर्क रुका है, तो before the execution of any work I should have the ample quantity of the materials required, है ना? मेरे पास ample quantity of materials रहना है before the execution। या 12 बजे कास्टिंग हो रहा था, अब मेरे पास साइट पे 1 बजे सीमेंट आ रहा है तो क्या होगा फिर, तो देर इज डिले ऑफ 1 आवर, है ना। तो बिफोर 12 आई शुड बी अवेलेबल विद, बिफोर 12 PM आई शुड बी अवेलेबल विद ऑल द मटेरियल्स, है ना। तो ऐसा स्टोरिंग एंड डिलीवरी उसका ऐसा मैनेजमेंट होना है कि ट्रैफिक हो गया था, गाड़ी नहीं आई, आज लेट हो गई, कल हो गई, तो all these things will not be considered in the this management, है ना। तो ये proper management before 1 day or before execution of the work, all this management related with the related with the materials to be taken care, है ना। वैसे कंस्ट्रक्शन वेस्टेज जनरेशन मैनेजमेंट ये भी एक इम्पोर्टेंट है। मेरे पास इतना ज्यादा लेके आ गया कि उसका अवेलेबिलिटी यूज ही नहीं था तो वेस्टेज हो गया वो। स्टील मेरे पास 10 टन था, मैंने 12 टन हायर कर दिया, तो 2 टन क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब होगा मेरे पास, जैसे अब कंप्लीट हो गया था, फिनिशिंग था, स्लैब हो गया था, उसके बाद फिनिशिंग काम खत्म हो गया था, अब स्टील का कोई यूज नहीं था। तो अब 10 इंस्टेड ऑफ 10 टन आई हैव ऑर्डर 12 क्विंटल्स और 12 टन, क्या होगा, 2 टन वेस्टेज होगा, रस्टिंग ऑफ स्टील। तो कंस्ट्रक्शन वेस्टेज जनरेशन एंड मैनेजमेंट, अब उसका क्या यूज होगा, उसका भी मैनेजमेंट होगा। मशीनरीज, वेरियस बुलडोजर्स और हैवी इक्विपमेंट्स जो नाउअडेज रिक्वायर्ड होते हैं उसका यूज, है ना। होस्टिंग एंड हॉलिंग इक्विपमेंट्स, यस ये भी एक थोड़ा सा एक एडवांस इक्विपमेंट्स है, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन के अभी जो चल रहा है, जैसे यहाँ पे रेलवेज के जो मेट्रोस के जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं या फिर फ्लाईओवर्स हो रहे हैं, उसमें जो एडवांस इक्विपमेंट्स होते हैं तो वो सारे इक्विपमेंट्स के बारे में वी विल स्टडी दिस यूनिट नंबर 3। तो वेरियस उसके डायग्राम्स है, वो 1 घंटे में कितना काम करता है या फिर 6 आवर्स में कितना काम करता है, उसका वर्किंग की कैपेसिटी कितनी है ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स, वी विल सी इन दिस यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 अगेन 3M, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर, मटेरियल्स एंड मशीनरीज, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में क्या रहेगा, देखो, क्वालिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। यस, अब सारा काम करना है बट मेंटेनिंग द क्वालिटी, we cannot hamper the quality, we cannot avoid safety management, avoid नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सेफ्टी प्रोविजंस भी आपको मेंटेन करना है, टाइम कंप्लीट भी कर रहे हैं, मटेरियल अवेलेबल है, सारे काम है, बट ऑल द वर्क इट इज टू बी क्वालिटी, इट इज टू बी मेंटेन, और सेफ्टी मैनेजमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ठीक है ना। सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी में भी, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में सेफ्टी बेल्ट प्रॉपर वे में है कि नहीं है, या फिर सेफ्टी के जैकेट्स रहते हैं, या सेफ्टी के उसके जो वेरियस लेबर्स के लिए या फिर वर्कर्स के लिए जो रहते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट्स के, उनके हेड्स रहेगा, उनके जो है ना ग्लोव्स रहेंगे या फिर बूट्स रहेंगे, गन बूट्स रहते हैं। तो ये सारा जो रहेगा वो सेफ्टी मैनेजमेंट एज पर नेशनल बोर्ड कोड ऑफ इंडिया, ये सारा है ना। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल बोर्ड व्हाट बिल्डिंग कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सारा वी विल स्टडी इन द यूनिट नंबर 4, क्वालिटी रिलेटेड पार्ट एज वेल एज द सेफ्टी रिलेटेड पार्ट, ठीक है ना। क्लॉजेस, सेफ्टी से रिलेटेड वेर आर क्लॉजेस आर देयर, ठीक है ना। इक्विपमेंट्स, MIS in constructions, management initial system
management integrated system, management integrated system in constructions. MIS is management integrated system in constructions. Project management सिस्टम MS प्रोजेक्ट, MS प्रोजेक्ट जैसा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MS प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एक कैलकुलेशंस होता है जिसमें सारे काम होते हैं। तो वी विल हैव मतलब इक्विपमेंट्स यूज करने की वजह से मैं कितना रिड्यूस कर रहा हूँ कॉस्ट को, और कितना मेरे पास रिड्यूस कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है या फिर मैन पावर रिड्यूस हो रहा है, मतलब उसमें क्या बैलेंसिंग है। तो ऑल दिस विल बी टेकन केयर इन MS प्रोजेक्ट। MS प्रोजेक्ट में ये सारा काम होता है, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 4। Unit number 5 is again important. Legal aspects in construction project. Legal aspects का मतलब कि legal में what are the different laws. Legal aspect. Legally अगर मेरा land और मेरा construction सही है नहीं है तो ये कौन decide करेगा? The government bodies will decide, है ना। Town planning officer will decide, or the government sectors will decide whether this construction work is feasible। मतलब मेरे पास मेरी लैंड है अगर 1500 स्क्वायर फीट, तो आई एम नॉट फ्री टू कंस्ट्रक्ट इन द फुल लैंड, है ना। मेरी लैंड है, मैंने कंस्ट्रक्ट किया, मैंने मतलब परचेज किया, तो आई विल कंस्ट्रक्ट ऑन द होल लैंड 1500 स्क्वायर फीट, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो देयर शुड बी सम क्लॉजेस, देयर शुड बी सम लॉज, और देयर शुड बी सम there is the interference of the government bodies regarding the constructions, ठीक है ना। कोई भी काम करने से पहले गवर्नमेंट बॉडीज का परमिशन रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर वे में उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो दिस लीगल एस्पेक्ट्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो टाउन प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स, है ना। क्या टाउन प्लानिंग बीइंग अ ग्रीन सिटी और बीइंग अ ऑरेंज सिटी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। तो क्या रिक्वायरमेंट्स है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सिटी। हर सिटी का अपना एक टाउन प्लानिंग का एक रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज का हर सिटी का एक अपना एक मतलब रिक्वायरमेंट्स रहता है। इट हैज बीन मेंशन इन द क्लॉजेस, गवर्नमेंट बॉडीज के पास वो सारे क्लॉजेस में मेंशन है। तो वी विल इन शॉर्ट स्टडी उसके वो सारे रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो टाउन प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स, एक्ट्स एंड कोड्स रिलेटेड टू प्लानिंग, ठीक है ना। उसके क्या क्या कोड्स है, व्हाट आर द डिफरेंट कोड्स रिलेटेड विद प्लानिंग, व्हाट आर द डिफरेंट कोड्स रिलेटेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। तो ये सारा will be studied in the unit number 5. Regional town planning housing, again the regional officer is there, town planning officer is there। तो उसके related में क्या उसके fulfillments है, what are the fulfill requirements for the town planning regional town planning officer। तो हाउसिंग स्कीम्स जैसे बनते हैं, तो हाउसिंग स्कीम्स में या फिर फ्लैट्स बनाना है, या फिर मेरे को एक इंडिविजुअल रेसिडेंशियल मतलब 1 BHK 2 BHK रूम बनाना है, तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, है ना। रिक्वायरमेंट्स उसके गवर्नमेंट बॉडीज के हिसाब से, ठीक है। तो डेवलपमेंट एक्ट, हाईवे एक्ट, इरिगेशन एक्ट, ये सारे एक्ट है ना। तो ये लोकल रूल्स, जैसे गुंटेवारी, जैसे नाउ डेज गुंटेवारी प्लेज इन इंपॉर्टेंट रोल, 7/12 होता है, गुंटेवारी होता है। तो ये सारा गुंटेवारी में अकॉर्डिंग टू गुंटेवारी और 7/12 रहता है, या फिर और भी जो NIT के जो रूल्स रहते हैं, है ना, NIT का सैंक्शंस रहता है। तो ऑल दिस टू बी कंसिडर्ड वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, है ना। ये सारी चीजें मतलब ओबे करना है, फॉलो करना है वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। तो ऑल दिस विल बी स्टडीड इन द यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 रिलेटेड विद द गवर्नमेंट बॉडी, ये 5 जो यूनिट है, 5th यूनिट है, वो गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड रहेगा। अगेन 6th इज लॉस, जैसे मैंने बताया था ना, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड लॉ। तो लॉ के लिए एक सेपरेट बिट है, ठीक है ना, सेपरेट यूनिट है। तो यूनिट नंबर 6 टोटली रिलेट विद द लॉस। एनवायरमेंटल एक्ट है, प्रोटेक्शंस, जैसे ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है अपने को, वेरियस प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है। nowadays oxygen level is very less in the atmosphere, है ना। तो why it is so, because construction इतना ज़्यादा हो रहा है कि we are hampering the atmospheric that is plants and trees and plants, ठीक है ना। तो environmental protection act क्या बोलता है कि how much greenery should be there within our construction areas, मतलब construction कितना परसेंट होना चाहिए, greenery कितना होना चाहिए। तो environmental protection act it is to be taken care for construction of building, है ना। तो nowadays green concept is also nowadays green building जैसा है, या फिर green concept जो है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो कंस्ट्रक्शन एरिया में ही एक्सटीरियर में ग्रीन कंसेप्ट इज यूजिंग, ग्रीन बिल्डिंग जो कंसेप्ट यूज होता है, तो वो सारा इट हैज बीन मेंशन इन दिस यूनिट नंबर 6 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जैसे मैंने बताया था, वी हैव टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट, है ना। नाउ डेज कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो पूरे विलेजेस के विलेजेस जो फॉरेस्ट था वो सारा खत्म हो गया, वहाँ पे इंडस्ट्रीज
शुगर केन के शुगर इंडस्ट्रीज आ गई है या फिर सीमेंट इंडस्ट्रीज आ गई है, या फिर ऐसा ऐसा हो रहा है कि पूरे विलेजेस खत्म होके हाईवेज एंड रोड्स उसमें से पास हो रहे हैं। तो वी हैव टू कंजर्व द फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, ये सब थोड़ा सा इन्वायरमेंटल से पार्ट है, तो ये भी इट हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट, यस। अगर एक प्रॉपर्टी जैसे मेरे खेत था और मेरे पास मतलब लैंड थी और वहां से रोड पास हो रही है, हाईवे पास हो रहा है, तो व्हाट इज द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट? मतलब अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एक्ट हाउ मच अमाउंट विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज, है ना। अगर रेलवे ट्रैक पास हो रही है या फिर कंस्ट्रक्शन में रोड पास हो रही है, तो ये सारा एक्ट से रिलेटेड में मेरे को कितना उसका एक्सपेंसेस मिलेगा, कितना उसका मतलब अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेल परचेज लीज अगर किसी को देना है उसके बारे में है। लैंड एक्विजिशन, ये जैसा मैंने अभी बताया था, लैंड एक्विजिशन, किसी का लैंड एक्वायर करना है बाय हुक और क्रूक, है ना। अगर आप सामने वाला नहीं देता है फिर भी एक्वायर कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रोड, वहां से रोड पास हो रहा है, हाईवे रिंग रोड पास हो रहा है, तो वो तो उतना खेत और उतना जमीन उतना विलेज तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज द नॉर्म्स गिवन इन द गवर्नमेंट सेक्टर रिगार्डिंग एक्वाजिशन ऑफ लैंड? लैंड को एक्वायर करने के लिए, लैंड को मतलब लेने के लिए व्हाट इज द क्लॉजेज मेंशन, ठीक है ना। लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगेन कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी से डीलिंग करना है, किसी से मतलब डीलिंग ऑफ द वन बॉडी विद द अदर, तो व्हाट आर द डिफरेंट क्लॉजेज मेंशन, ठीक है। तो इन दिस वे ऑल द 6 यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी यूनिट का हर एक कुछ स्पेशलिटी है, कुछ एक मेन पर्पज है। जैसा यूनिट नंबर 6 में लॉज रिलेटेड है, यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एंड सेकंड रिलेटेड विद, सेकंड इज रिलेटेड विद नेटवर्क डायग्राम है। ऐसा हर यूनिट में कुछ स्पेशल मतलब बिट्स आर देयर फॉर मैनेजमेंट। ये सारा काम क्यों करना है? मैनेजमेंट से रिलेटेड पार्ट है ना। कंस्ट्रक्शन प्रॉपर वे में होने चाहिए, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर ड्यूरेशन में, प्रॉपर कॉस्ट में, विदाउट हेम्परिंग प्लांट्स, विदाउट हेम्परिंग द एटमॉस्फेरिक एक्शन। जैसे यूनिट नंबर 6 बोलता है कि कंस्ट्रक्शन होना है बट विदाउट हेम्परिंग द एनवायरमेंटल, बाय मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल लॉस, है ना, कंजर्वेटिव लॉस। कंजर्वेटिव लॉस को मेंटेन करके आपको मैनेज करना है कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। तो ये सारा चीजें विल स्टडी इन द यूनिट नंबर 6। So these are the 6 units for the construction management and law, ठीक है। तो प्लानिंग मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एक जो बुक है बीसी पुनिया की है, ये बहुत सिंपल, एक इंडियन ऑथर है। तो मैनी कंसेप्ट्स इट हैज बीन क्लियर्ड इन दिस बीसी पुनिया बुक। ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के जो 6 यूनिट्स है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बुक में मिलेगा। यू हैव टू सर्च फॉर द डिफरेंट बुक्स बिकॉज डिफरेंट टॉपिक्स आर देयर। लॉ से रिलेटेड टॉपिक है, मतलब इन्वायरमेंटल से रिलेटेड टॉपिक है, तो कुछ बुक इन्वायरमेंटल की रिफर करना पड़ेगा, कुछ लॉस की बुक रिफर करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा थोड़ा सा अलग अलग बुक्स वी हैव टू रिफर फॉर डिफरेंट यूनिट्स इन दिस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट लॉ, ठीक है। तो we will complete whole syllabus in construction management law। जो अपने पास जो टाइम बॉन्ड है उसके विद इन, उससे पहले पहले में we will try to complete this construction management law, ठीक है। तो any doubts related with this? Any doubts related with this? Yes, समझ में आया सबको? No, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये नौमान भाई, गुंटेवारी क्या होता है? गुंटेबारी कैसा है? ये एक्ट है। अगर समझो मैं अगर कोई चीज परचेस कर रहा हूँ गवर्नमेंट बॉडी से, ठीक है ना, तो गुंटेबारी और 7/12, ये गुंटेबारी जो रहता है इसमें एक रजिस्टर रहता है जिसमें मेंटेन होता है कि दिस प्रॉपर्टी इट हैज बीन ट्रांसफर टू दिस वे। जैसा मैंने प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर किया हो, तो अगर मैं गुंटेबारी में हूँ तो वो कैसा है कि इरिगेशन लैंड ट्रांसफर हो रही है या फिर कंस्ट्रक्शन लैंड एक दूसरे की तरफ से, मतलब फिर कोई परचेस कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, तो एक डॉक्यूमेंट्री गवर्नमेंट बॉडीज के पास एक प्रूफ है उसका रजिस्टर में, गुंटेबारी एक्ट में। तो गुंटेबारी में वो सारा रजिस्टर होता है, प्रॉपर लीगल वे में ट्रांसफर होता है। तो ये गुंटेबारी जो है या फिर जो एनआईटी के जो मतलब इसमें जो गवर्नमेंट बॉडीज में जो 7/12 जो बोलते हैं अपन, है ना, रजिस्ट्री जो करते हैं, तो रजिस्ट्री और ये गुंटेबारी इट इज लीगल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन वन एंड टू अदर एंड, है ना। ये एक लीगल इसका डॉक्यूमेंट्री वर्क है, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ सर ये 7/12 जो है एग्रीकल्चर लैंड के लिए लगता है जी, ना? हाँ 7/12।
और वैसा एनआईटी के हिसाब से जैसा अपन कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे मैंने बताया था कोई यूनिट नंबर 4 में, जैसे कंस्ट्रक्शन करना है एनआईटी के रूल के हिसाब से, तो ऐसा है कि वी हैव टू लीव स्पेस फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स, है ना। तो ये सारा मेंटेन करना है, वी हैव टू प्रॉपर्ली मेंटेन द गवर्नमेंट बॉडीज, जितने गवर्नमेंट बॉडीज है, जैसे गुंटेवारी भी, मतलब अगर सैंक्शनिंग कराना है आपको, तो वो भी यही देखेगा कि मतलब आपकी लैंड ग्रीन में है, येलो में है, आपका कोई कौन सा लैंड कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मैंने अगर ग्रीन लैंड किया, तो ग्रीन लैंड में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, है ना। तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि विच लैंड मतलब कौन से बेल्ट में आता है, और वो बेल्ट जब ट्रांसफर हो रहा है तो कौन से बेल्ट में वो ट्रांसफर होकर मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, है ना। मैंने खरीदने के लिए ले लिया, मगर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मालूम पड़ रहा है कि दिस लैंड इज अंडर द फॉरेस्ट, दिस लैंड इज अंडर द ग्रीन ग्रीन बेल्ट में, तो मैं कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो दिस ऑल इट हैज बीन मेंशन्ड इन गवर्नमेंट बॉडीज, ये सारा मतलब गवर्नमेंट बॉडीज के पास है, उनके मैप्स के हिसाब से उसका डिविजन है कि विच लैंड्स कम्स अंडर विच सेक्शंस, है ना, कौन से लैंड कौन से सेक्शन में आती है, और कहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ऐसा है कि पूरा लैंड में हर जगह कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये सारा स्टडी करना है, वी हैव टू इन अ प्रॉपर वे, वी हैव टू स्टडी इन द मैनेजमेंट सेक्शन, ठीक है। सर ग्रीन और येलो लैंड सर, उसकी इंफॉर्मेशन निकालना तो एनआईटी से मिलती है क्या? यस 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 यस, ग्रीन एंड येलो लैंड्स की इसकी इंफॉर्मेशन पूरी एनआईटी के पास प्रिजर्व्ड है ना, उसके एनआईटी के पास उसके मैप्स रहते हैं पूरे सिटीज के, और सिटीज के मैप्स में मतलब जैसा अगर आपके जो भी लोकेलिटी है, जो भी लोकेलिटी रहेगी उसका मार्क रहेगा, और वो मार्क में कौन सा लैंड कितना हिस्सा कहाँ से कौन सी बाउंड्री से लेके कौन सी बाउंड्री तक उसका कौन से बेल्ट में आएगा, तो वो सारा प्रिजर्व्ड है। जैसा अभी गोरेवाड़ा का इधर देखेंगे आप, रिंग रोड के इधर साइड में, इट इज फॉरेस्ट एरिया, है ना, बहुत बड़ा अभी अपने पास वो बना है ना, जू बना है। तो ये सारा ग्रीन लैंड में है ना। तो आगे चल के फ्यूचर में उससे रिलेटेड जितने जो मकान रहेंगे, अब मे बी वो क्या हो सकते हो बता नहीं सकते, मगर इट इज अंडर द ग्रीन लैंड, है ना, वो ग्रीन लैंड है क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट था। अभी वो क्या हो गया, जू बन गया गोरेवाड़ा, जो जो जू बना है अभी ना। तो ऐसे अपने को एनआईटीज के ड्राइंग्स में ऑल थिंग्स आर मेंशन, उसके बाउंड्रीज मेंशन है ना। तो वो बाउंड्रीज देख के आपको कोई चीज परचेज करना है, कोई चीज कंस्ट्रक्ट करना है, कोई लैंड परचेज करना है, तो उसको पहले ये देखना है कि वेदर दिस लैंड इज अंडर द ग्रीन बेल्ट और इट इज अंडर अंडर द येलो बेल्ट, वो कौन से बेल्ट में है, कौन से जोन में है, तो उसके हिसाब से वी हैव टू कंस्ट्रक्ट। वो सारा एनआईटीज में प्रिजर्व है, ठीक है। एनी ओके आइडियाज? सर। ओके, तो हियर वी विल स्टॉप दिस टुडेज लेक्चर्स। एक मतलब इसमें एक चीज है, जैसा मैं स्टार्टिंग में मैसेज डाला था कमेंट बॉक्स में, यू हैव टू राइट डाउन योर नेम एंड रोल नंबर्स, है ना। तो वो वहाँ पे अगर मैंने नेम और रोल नंबर्स अगर डाला, तो इसमें कैसा होगा, वो वहाँ पे टाइम भी आ जाएगा, और ये जो सारा लेक्चर्स है इट हैज बीन रिकॉर्डेड, ये सारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स होगा, आपके अटेंडेंस भी जो वहाँ पे मार्क होंगे, दैट अटेंडेंस विल बी कंसिडर्ड, दैट अटेंडेंस विल बी कंसिडर्ड, ठीक है ना। तो चैट बॉक्स में एक फाइल बनती है हमारे लिए, हमारे पास, वो फाइल में विद द हेल्प ऑफ योर रोल नंबर्स और नेम अटेंडेंस विल बी मार्क, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जो जब भी जो भी आएगा, तो उसका वही टाइम पे आपको अटेंडेंस डालना है, सो दैट उसका स्टार्ट टाइम मालूम पड़ेगा। जैसे अभी कोई लॉगिन किया था अभी किसी ने, है ना, 1-2 मिनट पहले, तो अब उसने अब अटेंडेंस डाला होगा, तो उसका अभी का टाइम आ जाएगा, है ना। तो ऐसा जब भी स्टार्ट करेंगे आप लेक्चर्स में, तो आपको उसमें पोस्ट करना है, उसका टाइम विल डिसाइड एट व्हाट टाइम यू हैव स्टार्टेड द लेक्चर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक आप सबसे रिक्वेस्ट सर है। मेरा नेटवर्क के कारण 2-3 बार कनेक्शन फेल हो गया था, मैंने फिर से 2-3 बार रिज्वाइन किया। तो स्टार्टिंग में अटेंडेंस डाले थे क्या उसमें? नहीं नहीं, स्टार्टिंग में नहीं किया था, अब डाल दो। लेकिन 2-3 बार रिज्वाइन हुआ मैं फिर। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्द अभी उसमें अटेंडेंस डाल दो, है ना। वो भी मतलब एक फाइल बनती है जिसमें अटेंडेंस इट हैज बीन मेंशन, ओके और सर। मैं अपने प्रूफ के लिए भी अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है ना। ओके सर। तो रोल नंबर 1 to 10,